understand most of you who are attending this sessions are students, community here, engineering students, and many of you will also have aspiration to start your own ventures. And mainly, I'll touch upon today by introducing what exactly we are doing or where we have walked our journey from. And then next, uh, 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 for 15-20 minutes, I'll also touch upon how government has basically supported the entire entrepreneurship activity in the country, and what kind of start to scale up program that various ministries have. And I have given some example, but there are many more such example, and best to leverage those start to scale up program is actually going to a ecosystem, being part of the ecosystem, going to an incubator, and they will help you how do you leverage them. So I'll come back to that one by one, step by step. uh, Let me just introduce myself. My name is Poini Bhatt, and I'm like Hiranmaya has already make an introduction, but I'm little bit further than what he has already spoken about me. So I have been managing this incubator ever since inception, which is now 16 years. And when we started our incubation activity, there were practically entrepreneurship was not a preferred career choice in those days. So incubation, entrepreneurship, all those things were very, very novel concept and novel initiatives in the country that we had. And unlike many other things, sometimes we also like for things are not going right, we it's a natural tendency for us to blame government, that this is a fault on government. Unlike all those other area, this is one particular area where government has put in lots of effort, putting really work with community, build the community around by initiating new program. And when I say community, it's a student community, faculty entrepreneurship, incubators entrepreneurship. They have actually bring all the stakeholder together in this ecosystem. So government has done amazing work in this space, and I would like to share those particular few initiatives of the government here. Dara, can I request you to get into the next slide, please? So, just initial 5-6 slides are actually of Sign Incubator. I mentioned that we are a business incubator. We are actually incubator at IIT Bombay. It's an all of you must know what is IIT system, and it's a engineering college. And when we started in 2004, our main focus was on incubation. Uh, uh, which is entrepreneurship, which is based on technology entrepreneurship, and at that too product based entrepreneurship. So we had technology expertise at IIT Bombay, and you leverage this expertise and then uh, help them spin out their venture. So this is what we started with, that philosophy. When we talk about incubation, we have three bases of incubation. One is obviously startups with a very high potential uh, growth. Then there are startup which may not grow very big, but which has a societal impact, and then startup with a strategic value. And when I say strategic value, it's a strategic need of the country, like defense need or energy need or whatever it is, where startup may not become a very big by size or by revenue or by fundraising and valuation, but they cater to a very critical need of the country. Dhara, can I request you to go next, please? Okay. Uh, so, just what is sign? Like when you talk about incubation, what is incubation? It's not a physical infrastructure. Incubation is also, you know, uh, connecting with entire ecosystem. And our ecosystem is IIT Bombay. Our ecosystem is our network of investors, industry network, mentors. We focus on product based startups, so we also have a significant large network of designers, manufacturers, service providers.
Then there are startup associations like TIE, are there, CII have startup initiatives going on. Then there are NASCOM has startup initiative going on. See, even like, I would suggest that even if you people don't have startup, but you have eventually uh, interest to get into startup, it is a good idea to attend the events by all this association and get understanding, get into the network of the people who can who share, who can mentor you, who can share their experiences, what it takes in a startup journey. And then we also have lots of international connection. I'm not going to go detail in that, but when it comes to our incubation program, I said that it's a engineering and technology. Our typical focus area is all aspects of engineering technology, then biomed tech, life science, nanotechnology, finance, banking, legal, compliance. These are our typical focus area when it comes to incubation. Can I request you to go to next slide, please? Okay, now this is where the pretty much theme is today. But this is right now, I, what we are doing is exactly what government's focus is. So at Sign, we have typically three, set of entrepreneurs coming to us. Entrepreneurs who are very, very early stage. Sometimes they have very vague idea. Even if they have idea, they don't have team or those kind of. So typically we basically support those entrepreneurs under our pre-incubation program, where we have proof of concept grants. We have fellowship program where we give monthly fellowship to the startup to sustain and work on certain ideas. But typically they are grant oriented. There are lots of workshops and the mentoring that goes into this program, but it only when pre-incubate, when they successfully go and achieve the next milestone of creating startup or creating a business model, they formally get incubated in Sign for a longer period. And when I say longer period, our support is for 3 years, where they get physical infrastructure, they get access to the lab, they get funding, they get very, very structured mentoring, they get access to in our network of industry and whatever I spoke earlier. So this is incubation. And at a scale, we also run our accelerator program. Now incubation and accelerator are pretty much same, but in incubation it's a longer period and companies have offices there. In accelerator it's a shorter period. Companies do have offices, but there is a very fixed deliverable, and in a short time we try to provide that support. And depending on the program, that uh, 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 like any entrepreneur go through, like they get support on infrastructure, funding, mentoring, networking, media visibility, advisory, legal, IP, finance, those kind of things. Why I am sharing with you all this thing? Because I am also uh, giving you some insight that what incubation centers are and what kind of activities they are doing. This is exactly government want us to do. So uh, amid so many other programs that government have, incubation center, creating incubation center in academia is one of the very critical and most important and flagship program of the government here. Yeah, there are next, please. Thank you. So just to give you a sense what we have done in last 16 years, we have supported 168 startups. We those are started by 550 plus entrepreneurs. So each startup has 3 to 5 member teams. Collectively, they have raised funding to the extent of 1400 crore. So imagine the power and support that incubator can give to a startup, that they become worthy enough to uh, raise funding, follow on funding, plus they generate revenue. And collectively, they also have generated employment of
more than 4,000. So each of you student who have interest in starting up, you have a power not to seek the employment but to generate the employment. This is very important thing that you can do, very 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 impactful that you can do as an entrepreneur. uh, one specific thing, so you can read that, so I'm not going to basically speak out every word here, but one very important thing is that a successful incubator help its startup to go grow from scratch to a manner that like they are able to generate revenue and funding. And in our case, every 1 rupee that we have invested in our company, those companies have been able to generate 110 rupees from external resources. Yeah, yeah. Next, please. Uh, Now, just to come, a few programs, these are actually setting the tone of, if you look at it, each of this program has been supported by government, each of the program. So you see, you hear this AIT. AIT is Academia Industry Training Program, which is for a very, very early stage student community. They are part of academy. They want to work on certain projects. Now, whether those projects are worthy enough to start or commercialize, yeah, uh, this program actually addresses those aspects. And if they are worthy enough to commercialize, what it takes in commercialization, AIT is our focus is on those. So it's a 2 weeks boot camp. We run this boot camp in partnership with a Switzerland, with a SNT body, science and technology body called uh, Swiss Next, which is a body under Switzerland. Yeah, so that is our partner. For 5 years, we are running this program. Every year, 10 innovators from India and 10 innovators from Switzerland. They go through one camp in India and one camp in Switzerland. For 5 years, this has been done, is running as a program. It is supported by Department of Science and Technology, Government of India. Yeah. Uh, Plugin is accelerator program, which is our Intel is our partner in that program. Again, supported by the Department of Science and Technology. So it's an accelerator program. I was talking about pre-incubation. So AIT is one pre-incubation program. Nidhi Prayas and EIR are also other incubation program. Meet startup. So I'll talk what each program is, but these are actually government program. Start to scale, it gives you a sense, yeah, and they all are supported by central government. Uh, in fact, all state government also have their own programs. Uh, Hiranmay can talk about Gujarat. I can go talk about Maharashtra. I'm sitting in Maharashtra, so maybe in Q&A we can also address those things. Can I request for the next slide? Yes. So now these are the exactly start to scale up program that we are talking about. Yeah. Uh, there is a Department of Science and Technology, Government of India. In fact, it is the first government department in India who was supporting entrepreneurship way back in 80s. Maybe some of you were not even born that time. And startup entrepreneurship were not even popular in those days. And in those days, DST was trying very hard to support entrepreneurship, especially science and technology based entrepreneurship. So it's a long journey that it has, like when I say 80s, like it's more than 4 decades we are talking about, right? So, and then that program has evolved over a period of time from one structure or one framework to another framework. This is its latest basically framework. It is called NIDI, which is National Initiative for Developing and Harnessing Innovations. So NIDI has all start to scale up program. Yeah.
which is EIR, which is Prayas, which is Seed Support, Incubation, Accelerator Program. And let me walk you through what each of them has. So EIR is Entrepreneur in Residence Program. It is fellowship, monthly stipend that up to 30,000 it is offered to a budding entrepreneur. So you don't have to worry about your job placement. You don't have to worry about your, आपको खाना क्या मिलेगा, मैं रेंटल कैसे दूंगा, कहाँ से दूंगा, वो आपको टेंशन नहीं है. 1 साल के लिए आप स्टार्टअप आइडिया पे काम कीजिए. देयर इज अ फेलोशिप आपको मिलेगा मंथली 30,000 का. बट वो आइडिया आपका सीरियस होना चाहिए. और वो ऐसा नहीं है कि लाइक फ्रीली अवेलेबल एंड आई जस्ट गो यूज इट एंड फिर आई फॉरगेट अबाउट माय स्टार्टअप. इट्स अ सीरियस प्रोग्राम. तो आपको कुछ आइडिया है, आपको कुछ उस पर डेवलप करना है, जैसे टीम बनाना है या कुछ माइलस्टोन करना है कि मेरे को ये आइडिया है पर मुझे बेसिक प्रोटोटाइप या कुछ सॉफ्टवेयर कोड लिख के उसको फंक्शनल बनाना है. अभी वो लेवल पे एंटरप्रेन्योर या कंपनी को और आपको पता भी नहीं है कि मैं कंपनी करूंगा कि नहीं करूंगा, पर मुझे थोड़ा उस पर एक्सपेरिमेंट करना है. एंड you are sacrificing your placement or job offer coming to you. And out there government is telling hey, you don't have to worry about your daily sustenance. 30,000 we will give it to you. You pay your monthly spending, personal spending is taken care of, बट यू फोकस ऑन दिस आइडिया. एंड जो पैसा बचता है वो थोड़ा आइडिया में भी डाल सकते हैं. आपको कोई को फाउंडर लेके आना है तो आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं. तो ये हुआ एक EIR प्रोग्राम. दूसरा प्रोग्राम है प्रयास करके है. प्रयास भी एक एक्रोनिम है कि प्रोटोटाइप के लिए एक एक्रोनिम बनाया हुआ है. मुझे बहुत लंबा है तो मेरे को भी याद नहीं है उसका. आप DST के साइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा. तो उसमें अभी ये प्रोटोटाइप सपोर्ट है. तो कैसा प्रोटोटाइप, जैसे हार्डवेयर प्रोडक्ट बनाना है, आपको डिवाइस बनाना है, आपको कोई मेडिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाना है या आपको कुछ वेरेबल IoT डिवाइस बनाना है जैसे इंडस्ट्री के लिए लगाने के लिए या ऑटोमोटिव के लिए. तो वो प्रोटोटाइप बनाने के लिए जैसे कोई फैकल्टी के पास रिसर्च होता है, आपके प्रोफेसर के पास, तो उनको शायद कोई गवर्नमेंट की रिसर्च ग्रांट मिल सकती है. कभी कभार इंडस्ट्री भी यूनिवर्सिटी के साथ काम करते हैं उनके काम के लिए, तो वो इंडस्ट्री भी स्पॉन्सर रिसर्च दे सकते हैं. पर जब बडिंग एंटरप्रेन्योर उनको कुछ बनाना रहता है और आपके पास आपने स्टार्टअप भी बनाया फॉर एग्जाम्पल, बट वो स्टार्टअप का इतना अचीवमेंट अभी तक हुआ नहीं है, कुछ ट्रैक्शन हुआ नहीं है, माइलस्टोन ज्यादा हुआ नहीं है, तो आपको इन्वेस्ट और आपके फ्रेंड्स फैमिली बूटस्ट्रैप भी आपने थोड़ा बहुत किया बट ज्यादा आप कर नहीं पाते हो और आपके आइडिया में अगर मेरिट है, then government has given this money to the incubator centers. There are select incubator centers. They have given money to this incubator center to support this innovator just for prototype. Yeah, in this prototype you get the grant up to 10 lakhs and it's a free grant. Okay, आपको वापस पैसा देना नहीं है. ऑल आपको जो करना है सीरियसली प्रोटोटाइप पे, स्ट्रॉन्ग प्रोटोटाइप का आइडिया लाना है, उस पे काम करना है आपको. और जस्ट कम ऑन द प्रीवियस स्लाइड दारा, इट हैज गॉन बैक. दारा कैन यू ब्रिंग ऑन द प्रीवियस स्लाइड? नो प्रीवियस ये लास्ट है. आगे और एक, हाँ, because I was still on DST program. No, next please. Yes, please be there. So आपको प्रोटोटाइप पे काम करना है उस पे, और उसको प्रोटोटाइप में मतलब आइडिया से थोड़ा कन्वर्ट करके आपको फंक्शनल प्रोटोटाइप बनाना है. और वो प्रोटोटाइप पे आप जब काम करते हो और सक्सेसफुल होता है और लगता है आपको कि उसमें आप
आगे बढ़ेंगे, देयर इज अ बिजनेस केस, तो फिर उस पे बिजनेस स्टार्टअप केस बनाइए और उस पे फिर इंक्यूबेशन के पास जाके आप इंक्यूबेशन सपोर्ट ले सकते हैं या तो अपना खुद का काम कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहती हूँ कि कैसे कैसे प्रोटोटाइप सपोर्ट बने हुए हैं, और जस्ट टू गिव यू अ सेंस, तो ये प्रोटोटाइप सपोर्ट लाइक हमने जो 2-4 किया था, तो मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल देती हूँ दैट वो प्रोटोटाइप सपोर्ट के लिए एक देयर वाज अ टीम दैट केम टू अस कि जो हमारे लाइक छोटे बच्चों के लिए जो क्रेडल रहते हैं, राइट, बच्चों लाइक गुजराती में उसको घोड़ियों या पाणो बोलते हैं, वो क्रेडल जो रहते हैं, वो क्रेडल में बच्चा रहता है। अभी पेरेंट्स अभी जॉइंट फैमिली में तो है नहीं, न्यूक्लियर फैमिली में है, और जब न्यूक्लियर फैमिली में अगर रहते हैं तो पेरेंट्स का फुल attention बच्चों के when he is in the cradle, you can't give that full attention. So there was a team, they came out with a idea of smart cradle, जहाँ पे बच्चा सोया हुआ है और उसके वाइटल पैरामीटर्स आर गेटिंग ट्रैक, या जैसे उसको फीवर है, उसको कॉफिंग है, टेम्परेचर है, कॉफिंग है, उसका कोई दूसरा वाइटल पैरामीटर इम्पैक्ट हुआ है, कैसा है, बच्चा नींद में है, हिल रहा है, ये सब पैरामीटर कैन बी सीन ऑन मोबाइल ऐप. So parent can, whichever room they are, they can see it and they can attend on the need basis. अभी वो उसका इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसको इंटरनेशनल ऑर्डर अभी मिलना शुरू हुआ. छोटा सा आइडिया था, उसमें से उन्होंने प्रोटोटाइप किया, प्रोटोटाइप बना के वो इंक्यूबेशन, एक इंक्यूबेटर में गए, वहां पे दूसरे कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का उनको कुछ फंडिंग सपोर्ट मिला और प्रोडक्ट इतना फाइनल हो गया कि उन लोगों ने अभी इतना स्टार्टअप बनाया और स्टार्टअप उनका प्रोडक्ट अभी इंटरनेशनली बिकता है. बराबर. वहां तक नहीं, जो उन्होंने वाइटल पैरामीटर का जो पूरा यूनिट बनाया था, अभी वही टूल और ऐप राइट नाउ इज रेलेवेंट फॉर कोविड. जो अभी कोविड चल रहा है, पेशेंट को भी रिमोट ट्रैकिंग कर रहे हैं. इट इज वेरी इन्फेक्शियस, आप सबको पता है, आपको टच नहीं करना है, डॉक्टर को टच नहीं करना है, सो यू कैन चेक इट विथ रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम. सो एक छोटा सा 10 लाख का ग्रांट कितना इम्पैक्टफुल हुआ है, आपको थोड़ा आइडिया देगा. So ये प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, हाईली सक्सेसफुल. राइट नाउ 400 प्लस innovators are supported under this program in just 2 years. Yeah, so that is another thing. Then coming to seed support. Seed support is at 50 lakhs up to 50 lakhs. So under हर एक मिनिस्ट्री का अलग अलग रहता है, तो मैं दूसरी मिनिस्ट्री का भी बात करूंगी. The support is pretty much on the same line, but DST में अगर कंपनी बनाया और आपके पास बिजनेस मॉडल है सॉलिड, आपके पास टीम है, आपको पता है कि मुझे ऐसा बिजनेस करना है, पूरा रोड मैप बनाया हुआ है कि मैं 1 साल में मैं ये माइलस्टोन अचीव करूंगा, 2 साल में मैं यहाँ पे जाऊंगा और 3 साल में मेरा रेवेन्यू इतना बढ़ के इतना हो जाएगा, अगर ये है तो you can also apply for seed support. Yeah, 50 lakhs ka. So now starting with just fellowship, prototype, going to incubator center, then getting seed support, the whole start to scale program has been covered by DST under NIDI program. Technology Business Incubator is an institutional program जो इंडिविजुअल को नहीं मिलता है, वो जो मिलता है यूनिवर्सिटी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को मिलता है टू सेटअप ए टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर सेंटर, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर जाके काम कर सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं, काम कर सकते हैं. अभी ये डीएसटी, जैसे मैंने बताया कि डीएसटी वाज द फर्स्ट government ministry in the country who had a very structured program on entrepreneurship. ये लोग सब उनका जो
प्रोग्राम इतना मतलब गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने जो काम किया है वो प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ कि अलग अलग मिनिस्ट्री ने भी उनके ही प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप जैसे ट्राई टू copy those and introduce those programs for within their ministry for their focus area. जैसे DST का क्या है, technology is a focus, so science technology is permitted, any kind of science technology is permitted under DST. Now can I request to go to next? Dara? Yeah, thank you. So now ये हमने DST का बात किया. दूसरा मिनिस्ट्री है, एंड अभी तो मैं सब गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की बात कर सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात कर रही हूँ. स्टेट गवर्नमेंट में आई एम श्योर किरणमयी जी भी आपको बताएंगे कि क्या है, कैसा प्रोग्राम है गुजरात का, एंड महाराष्ट्र का भी मैं थोड़ा बात करूंगी. अगर आप महाराष्ट्र कोई वहां से वापिस आना चाहते हो मुंबई में तो कैसे प्रोग्राम है वो भी मैं थोड़ा बात करूंगी. पर अभी जो मैं बोल रही हूँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है जो हर एक स्टेट में सपोर्ट किया हुआ है उनको. और वहां पे ऐसा कंडीशन नहीं है कि ये गुजरात का ही होना चाहिए, महाराष्ट्र का ही होना चाहिए, कर्नाटक का ही होना चाहिए. इट कैन बी सपोर्टेड, all kind of entrepreneurs can be supported by them. Okay, so coming to the next start to scale program of METI. METI also has a same program. It is called EIR fellowship program. वो भी 30,000 but instead of 3.6 lakh it goes up to 4 lakh. Yeah, annual आपको इतना फेलोशिप मिलेगा, वो आपको डिसबर्स होगा 3-3 महीने के हिसाब से डिसबर्स होगा. आप आओ दिखाओ आपने क्या प्रोग्रेस किया है, फिर आपकी फेलोशिप कंटिन्यू करेंगे. तो फेलोशिप यानी स्टाइपेंड ही समझ लो कि वही है. या मेटी का प्रोटोटाइप सपोर्ट 7 लाख का है. नाउ ये कैसे मतलब डिफरेंट है, जैसे डीएसटी का सपोर्ट से एक तो अमाउंट में डिफरेंट है, बट मेटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो यहाँ ये पर्टिकुलर प्रोटोटाइप में आईसीटी होना बहुत ही जरूरी है. जैसे डीएसटी का जो प्रयास प्रोग्राम है वो सिर्फ फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस उस पे फोकस करता है. मेटी का ऐसा नहीं है, वो सॉफ्टवेयर AIML उस पे भी वो सपोर्ट करते हैं. तो जरूरी नहीं है कि उनको सिर्फ हार्डवेयर होना चाहिए. ये एक चीज हुई. डीएसटी जैसा साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट के फॉर मेरे को एक स्ट्रिप बनाना है फॉर डायग्नोसिस ऑफ टीबी फॉर एग्जांपल, और डायग्नोसिस ऑफ माय किडनी का इंजरी. या ना उसमें आईसीटी कुछ है नहीं उसमें, तो वो मेटी सपोर्ट नहीं करेगा, डीएसटी सपोर्ट करेगा. पर मेटी सिर्फ आईसीटी वाला सपोर्ट करेगा, डीएसटी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करती है, प्रयास सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करती है. मेटी टाइट सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट करता है. तो ये दो प्रोग्राम में ये फर्क है. वो भी सीट सपोर्ट, अगर आपने कंपनी बना दिया, सीट सपोर्ट इज ओनली फॉर रजिस्टर्ड कंपनी, इट इज नॉट फॉर अनरजिस्टर्ड और इंडिविजुअल. तो अगर आपने कंपनी बना दिया, आपकी कंपनी प्रोग्रेस कर रही है और आपको ग्रोथ के लिए आपको कैपिटल चाहिए, तो आप 40 लाख करो. तो ये है. दूसरा मीटिंग में ये भी है कि हैकेथॉन के लिए, अभी हैकेथॉन तो मुझे आई एम श्योर आप सबको पता रहेगा, आप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में है. GTU also must be doing lots of hackathon initiatives. तो हैकेथॉन का फंडिंग भी वो टाइट्स में मिलता है. दैट फंडिंग इज नॉट स्मॉल हिरणमयी जी, वो आप देख सकते हो उसका फंडिंग करीब करीब 10 लाख तक अवेलेबल है. नाउ या सो नाउ इसके लिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं है, बट कोई टाइट सेंटर आपके नियर एरिया में है, जैसे गुजरात में 2 या 3 टाइट सेंटर्स हैं, तो अगर वो वहां पे है तो आपकी यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी के साथ में अफिलिएशन या कोलैबोरेशन करके जॉइंट हैकेथॉन भी कर सकती है यहाँ पे. तो वो एक हैकेथॉन एंड इसमें प्राइज मनी टू डेवलप द प्रोटोटाइप इज आल्सो इन्वॉल्व. सो ये मेटी का प्रोजेक्ट है.
पर देखोगे तो जैसे entrepreneurship actually starts with tinkering. या जब आप शुरू करते हो तब आपको पता नहीं है कि क्या है, आप प्रोटोटाइप अपनी मर्जी से बना लेते हो, आपको इंटरेस्ट है इसके लिए बनाते हो आप, और जब धीरे धीरे वो इवॉल्व होता है तो इट कैन गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। या अगर आपको स्टार्टअप भी नहीं करना है, बट टिंकरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली important for your future journey, because unless you do with your hands, you develop a product, the curiosity or engineering curiosity or building engineering product, you will not be have a total sense on it. So please participate in hackathon whenever the hackathons are announced in your region. yeah? तो आपकी जर्नी, टेक्निकल जर्नी तो वहीं से शुरू होती है, आपको स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दो एवरीथिंग इज देयर, बट हैंड्स ऑन बनाना है तो हैकेथॉन में जाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कैन आई गो टू नेक्स्ट प्लीज? Okay, now this is third program, so I am limiting only to 3 program, mainly reason mainly because this is one, मुझे 3 फ्लेवर देना था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा फ्लेवर वो इलेक्ट्रॉनिक्स आईसीटी, एंड थर्ड इज ये बायरेक जो बायोटेक एंड मेडिकल एंड हेल्थ केयर के लिए है। फिर बहुत सारे प्रोग्राम हैं, वैसे देखोगे तो पूरा दिन लग जाएगा, पर मैं कुछ थोड़े अभी बता रही हूँ, एंड देन वी कैन गो इनटू क्वेश्चन एंड आंसर। या so BIRAC is a body actually it's a company, not for profit company, that was set up by Department of Biotechnology, Government of India. So BIRAC, and the objective of BIRAC was to promote entrepreneurship and promote ecosystem in mainly healthcare, biotechnology and medical domain. अभी जब मैं बायोटेक्नोलॉजी बोलती हूँ तो सिर्फ मेडिकल और हेल्थ केयर नहीं आता है, एनीथिंग दैट हैज लाइफ, तो एग्रीकल्चर कैन कम अंडर दैट, एनिमल हस्बेंड्री कैन आल्सो कम अंडर दैट। या सो those kind of, even like waste management using biomaterial can come into it. Yeah, so it's a very wide spectrum of focus when I talk about biotechnology. उनके पास भी बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हैं। इनफैक्ट व्हाट यू आर रीडिंग हियर, सितारे एंड ई-युवा, they are actually student specific program. So please Google Sitare or Yuva BIRAC, they will take you to the program link and go through it as a student, like what you can do, you know, and then there is a good amount of support. जैसे सितारे और युवा में 1 लाख से 15 लाख का ग्रांट सपोर्ट है, प्लस देयर आर बूट कैंप्स, आपको ओरिएंटेशन भी मिलता है, मेंटरिंग भी मिलता है कोई आइडिया पे। BIG is Bio Ignition Grant, which is a very serious nature. You have a solid idea into healthcare or biotechnology or the medical technology or medical devices. Government gives free grant up to 50 lakhs. It's not a small money. आपने देखा होगा वो जो आगे वाले प्रीवियस स्लाइड में कि 40-50 लाख DST और मेटी सीड मनी के लिए देते हैं, और प्रोटोटाइप 7 लाख और 10 लाख का देते हैं। ये बायरेक का जो प्रोटोटाइप सपोर्ट प्रोग्राम है 50 लाख का है, क्योंकि हेल्थ केयर टेक्स लॉन्गर जेस्टेशन और लार्जर मनी, तो उसका भी स्टार्टअप देखोगे तो 50 लाख का इज अ बिग सपोर्ट, एंड अगेन इट्स अ ग्रांट सपोर्ट। या अब सिर्फ आपको सीरियस आइडिया होना जरूरी है। इनफैक्ट बायरेक जो BIG प्रोग्राम है वो पार्टनर के थ्रू करते हैं, तो साइन इज आल्सो वन ऑफ द पार्टनर्स फॉर BIG। सो दैट इज वन थिंग। ये सितारे और युवा आप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है।
DST also has some student science innovator programs, वो भी आप देख लीजिएगा कि वहाँ पे है। दूसरा चीज है मायरेक का इंक्यूबेशन प्रोग्राम। वो इंक्यूबेशन प्रोग्राम अगेन वो पूरा लाइफ साइंस के लिए, वो आपको लेबोरेटरी चाहिए, आपको प्रोटोटाइपिंग चाहिए, आपको वेट लैब चाहिए, आपको काफी कुछ साइंस रिलेटेड वेरी स्पेशलाइज्ड लैब्स चाहिए, तो मायरेक वो इंक्यूबेशन के अंडर सपोर्ट करता है। तो ये एक दूसरा चीज हुआ। गुजरात है सेवरल incubation, they call it Bionest. Their program scheme is called Bionest, and there are several Bionest incubator. One is in Baroda. There are 3 or 4 are in Gujarat, or sorry, Ahmedabad and Gandhinagar. So Naipur is there. Then I think Pard करके है इंस्टीट्यूट, वो भी है वहाँ पे। वेंचर स्टूडियो इज देयर। सावली में एक है, वडोदरा सावली में एक है बायोनेस्ट। तो आपको किसी को भी वो हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस बेस्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है। डिवाइसेस अगर बना दिया, मेडिकल डिवाइस, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, तो आप बायोनेस्ट में जाके उसका लाइक सपोर्ट लीवरेज कर सकते हैं। तो बड़ौदा और गुजरात गांधीनगर, और बड़ौदा अहमदाबाद गांधीनगर आप जरा देख सकते हैं। आपको उनके भी सीट सपोर्ट प्रोग्राम 30 लाख to 1 crore है। तो यू गो विथ 1 स्टेज ऑफ DIG, वो प्रोटोटाइप किया, आपने इंक्यूबेट किया, फिर आप इंक्यूबेटर के पास से सीट सपोर्ट ले सकते हो। और बायरेक में तो लेटर में फंडिंग सपोर्ट भी है कि इंडस्ट्री के पार्टनरशिप के आपको कोई इन्वेस्टर ने 2 करोड़ दिया, तो बायरेक गिव यू अनदर 2 करोड़, तो 4 करोड़ आप एक साथ में कर सकते हो। तो ये मेन प्रोग्राम हुआ स्टार्ट टू स्केल अप, मेन 3 मिनिस्ट्री का। there are lots and lots of other programs. I think time is not permitting, but last slide I will get into is basically just to give you an overview कि दूसरी मिनिस्ट्री स्टार्टअप के लिए क्या क्या कर रही है। So can you go on the last slide? Okay, so Atal Innovation Mission, which is under Niti Aayog, they have Atal Tinkering Lab that they set up in school as well as colleges, and then they set up Atal Incubation Centers also in university or colleges. So ये हुआ Atal Innovation का AIM. So they have 2 programs, ATL which is for school and AIC which is for the colleges. Startup India, यहाँ पे फंडिंग प्रोग्राम नहीं है, पर स्टार्टअप इंडिया कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आपने स्टार्टअप इंडिया बहुत सुना होगा कि ये स्टार्टअप, आपको कभी हुआ भी होगा कि ये स्टार्टअप इंडिया में होता क्या है, क्योंकि उसमें कोई फंडिंग प्रोग्राम नहीं है, पर क्या है उसमें, आप स्टार्टअप हो तो उसका एक कुछ रिकॉग्निशन मिलता है। वो रिकॉग्निशन के हिसाब से आपको काफी कुछ इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलते हैं, आपको काफी कुछ कैपिटल गेन के एग्जम्पशन मिलते हैं, एंजल टैक्स और ये सब के लिए आपको आईपी सपोर्ट मिलता है। तो उसमें आईपी सपोर्ट में क्या मिलता है कि आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी आपको सबमिट फाइल करना हो तो उसके लिए पैसा लगता है, तो दे कनेक्ट यू टू द लॉयर्स, आईपी लॉयर्स, एज वेल एज दे पे योर मनी टू द लॉयर्स, एंड दे फाइल आईपी ऑन योर बिहाफ। सो डायरेक्टली हाथ में कैश नहीं आएगा आपका, पर अगर आप स्टार्टअप रिकॉग्निशन हो तो आप उनका आईपी प्रोटेक्शन सपोर्ट भी ले सकते हैं आप, बराबर। दूसरा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो आपको even Gujarat government can do, is that every startup that is recognized on Startup India portal, Government of India is actually encouraging several of its departments to buy their requirement से of any, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रोटेक्टिव गियर्स, या पीपीई है, मास्क है, या सैनिटाइजर है, वो सब है।
तो अगर ये आपका एक GEM करके पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट करके, तो स्टार्टअप रिकग्निशन वाले जो स्टार्टअप है वहाँ पे पोर्टल में रिकग्नाइज किया है। जेम में भी अगर आप वहाँ पे रिकग्नाइज हो जाते हैं तो गवर्नमेंट विल डायरेक्टली बाय फ्रॉम यू विदाउट एनी टेंडर। तो एंड आप सोचिए, अगर गवर्नमेंट इज योर क्लाइंट, इट्स अ बिगेस्ट क्लाइंट इन द वर्ल्ड। लाइक गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है वो इतना हेवी होता है, इतना ज्यादा होता है कि आपको मतलब रेवेन्यू का कोई परेशानी ही नहीं है इस मतलब। सो दैट इज one program. MHRD also has one program, again central government MHRD. They have pre-incubation program, they have hackathon. जैसे मेटी में बोला था ऐसा MHRD का खुद का भी है। They have incubation cell, innovation cell. So ये incubation cell and innovation cell, they encourage colleges, universities, institutions to set up on their campus for their student activity. तो MHRD का भी ये प्रोग्राम है and it's always basically good to have e-cell on the campus. So ये सब activity workshop होता है तो students get exposed directly on this activity. I think I'll stop here. I have taken way beyond 45 minutes. I don't know, have I taken more than 45 minutes? No, enough. I mean, you have enough time though. We'll take some questions and answers for sure. Thank you for sharing about how innovators can get money, and आप सब लोग agree होंगे कि there is more money than you can digest than you can anticipate. But question is, this is what we talk about is, are you a fund ready innovator? Are you a fund ready startup? That is much more important than how much money that you can get. सरल इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर मैं आप सबको मैडम की बात को समझाने की कोशिश करूंगा, सरकार एक ऐसा संस्था है जो आपको फ्री में या बहुत ही ज्यादा सब्सिडाइज्ड इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करता है। अगर आपकी कंपनी में 10 रुपया प्राइवेट सेक्टर से लेते हो, किसी एंजल इन्वेस्टर से या VC फंड से, और X% इक्विटी में लेते हो, तो इसका मतलब आपको X into Y का वैल्यू क्रिएट करके देना होगा। अगर आपको कोई 1% इक्विटी में 10 रुपया दे रहा है, इसका मतलब आप उसको 10 रुपया कमा के देने वाले हो या 10 रुपया का वैल्यू क्रिएट करके देने वाले हो। लेकिन सरकार एक ऐसा संस्था है, शुरुआती दिनों में इतना ज्यादा ग्रीडी ना बन के आप सबकी इनोवेशंस को आगे लेने के लिए सपोर्ट करने आ रहा है। और उसकी सबसे मूलभूत आधार यही है, इनोवेटर का शुरुआती दिनों में जो चैलेंजेस होता है वह रिस्क रिवार्ड गेम बहुत हाई होता है। शुरू के दिनों में अगर आप इनोवेशन का वैल्यू चेन बनाओ, जैसे मैडम ने बताया, शुरुआती दिनों में कोई VC फंड या एंजल फंड आके पैसा नहीं लगाने वाला है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आपके आइडिया का क्या होने वाला है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपका आइडिया बड़ा होते जाता है, जैसे ही आइडिया मैच्योर होते जाता है, आपको बाकी सारे ट्रैक्शन मिलता है, बाकी सारे इनोवेटर्स को, बाकी सारे इन्वेस्टर्स की पैसा मिलता है। तो मैडम, I will, with your liberty, I will tell about little what Gujarat government scheme is having. Sure. I will just share one slide from my desktop, which will probably help you guys to understand a bit. I think that is more helpful in that sense. Are you guys able to see my screen? Yes, sir. Yeah. So I'm in a screen. I'm just showing one slide of that screen. This was something that I was teaching in a class yesterday. This is what Gujarat ecosystem is. This is what overall Gujarat innovation support system is. So we have 4 different funnels. 4 अलग-अलग तरीके से मदद कर रहे हैं, right? The framework number 1 is 14 लाख बच्चों को उनकी दिमाग आइडियाज को प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाने का जो कामकाज है वो हम करते हैं। मतलब स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी या बाकी सारे जो उसकी जो यूनिवर्सिटी इनोवेशन सेंटर्स है, इनका काम है। तो पहला जो बॉक्स है वो उन्हीं का काम है, जिसमें हम प्री इंक्यूबेशन की बात करते हैं, जिनका हम इंक्यूबेशन की बात करते हैं। तो दिस पॉलिसी एंड दिस सपोर्ट सिस्टम इन गुजरात इज वन ऑफ इट्स काइंड। इस देश में किसी भी राज्य में आपको विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को आइडिया स्टेज पे कोई फ्री ग्रांट नहीं देता।
And this grant also comprises of intellectual property rights support. It also comprises of product design support. It also comprises of support for product development, right? So every year, 1,000 innovators can be supported for proof of concept, and 1,000 innovators can be supported for intellectual property right. Apart from this IP prototype support, it also helps kind of doing programs, hackathons, open innovation challenge, and all kind of large scale horizontal playing game. That's game number 1. ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ड्राइव होता है, आई हब के द्वारा ड्राइव होता है, स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी के द्वारा ड्राइव होता है। जैसे ही आप एक कदम आगे चले जाते हो, आपको 2-2.5 लाख मिला, आपने अपने आइडिया पे काम किया और आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बन गया, अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री की तरफ से एक स्टार्टअप स्कीम बनाया गया है जिसमें अप टू 21 लाख आपको सपोर्ट मिलता है। अगर आपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बना दिया, अब आपको पूरा प्रोडक्ट बनाना है, तो उसमें 10 लाख रुपया प्रोटोटाइपिंग के लिए, 10 लाख रुपया मार्केटिंग के लिए, एंड 1,20,000 हर महीना जो है 10,000 रुपए का स्टाइपेंड, ताकि आपकी पॉकेट खर्चा चलते रहे, यू आर डूइंग इट फुल टाइम, राइट? तो ये सपोर्ट जो है ये 250 करोड़ का फंड स्ट्रक्चर। तो 200 करोड़ हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आइडिया स्टेज पे सपोर्ट कर रहे हैं, 250 करोड़ लगा रहे हैं आइडिया स्टेज को नेक्स्ट स्टेज पे लेने के लिए, जो भी लोग नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहते हैं। फिर तीसरा इंटरवेंशन आता है, अगर आप प्रोडक्ट बना लेते हो, उसको टेस्टिंग करना, उसको इंक्यूबेशन तक ले जाना, उसको ग्रोथ स्टेज तक ले जाना, प्री ग्रोथ स्टेज तक ले जाना, उसका साइंटिफिक वैलिडेशन करना, उसको इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, ये इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से एक अलग से इंक्यूबेशन सीड सपोर्ट का स्कीम बनाया गया है। तो तीसरी स्टेज पे इंटरवेंशन आता है, आइडिया स्टेज, प्रोटोटाइपिंग स्टेज एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपकी कंपनी जो है प्रोडक्ट बन गया है, मार्केट पे आप फिट हो जाते हो, और उसके बाद आपको जो है कहीं ना कहीं कंज्यूमर तक जाना है, ग्रोथ करना है, आपकी टीम बढ़ाना है, आपके रेवेन्यू चालू हो गया है, आपने एंजल इन्वेस्टमेंट वगैरह ले लिया है, आपकी कंपनी आप कैश फ्लो चालू हो गया है, अब आपको पैसा चाहिए अपने व्यापार को फुलाने के लिए, अब आपको पैसा चाहिए आपकी कंपनी को बड़ा करने के लिए, आपको वहाँ वेंचर कैपिटल की जरूरत है, आपको पोस्ट एंजल पोस्ट सीड सपोर्ट की जरूरत है। तो वहाँ हर साल 50 के आसपास स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए गुजरात सरकार की प्रमोटेड एक एंटिटी है कॉल गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड, जिसमें अराउंड 300 करोड़ का फंड स्ट्रक्चर है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री ड्राइव करता है। तो अगर जो लोग आज यहाँ सुन रहे हैं, मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, गुजरात एक पहला राज्य है जहाँ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सपोर्ट सिस्टम दोनों इंटीग्रेटेड है। मतलब अगर आप आइडिया स्टेज में हो तब भी आपके लिए सुविधा है, अगर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टेज में हो तब भी आपके लिए सुविधा है, अगर आप प्रोडक्ट स्टेज में हो and every ministry has its own strength. For example, SSIT has access to 1 million students. So the pre-incubation game is at that pocket. Industries department has access to many mentors, many infrastructure, the industry corridors, and the entire gamut of things. So they run into. So what we are trying to do is riding upon complementary strength, which is really tough to happen in a public system. But this is the miracle that has happened somehow. So if you enter in the left side, you can exit on the right side. There was a student, I will tell a story to elaborate what I'm trying to say. When I was an entrepreneur in third year of my college, one boy came to me as an intern. And while interning, he told me that I also want to build a company, talking about around 6-7 years before. Now, at that time, he was needing a couple of lakhs. So now, at that time, there was a scheme like SSIP, but yes, somehow that money was managed. Now, then they build the product. They wanted another 25 lakhs. Look, at that time, there was no support system like the seed grants. So they go for an angel investor, they dilute some equity. But today, if you are an entrepreneur, you don't need to dilute equity because government is giving you free grants if you are innovative, right? After shading out equity of a couple of percent, now if you are an innovator, if you are an entrepreneur, you need to figure out what fits you well, where you can get resources. And Gujarat is one of the states who works from pre-incubation to acceleration and growth phase. So this is something that I wanted to share with you, and I hope so this might have given you a little elaborated, and this was what I was trying to communicate. Madam, I have some questions from the participants. Should I post through you? Yes, sir. Wonderful. One question I can see from the participant is,
they are saying that why the incubation centers are only in metro cities and big cities. सौराष्ट्र में incubation center कोई नहीं बनाते हो, कच्छ में नहीं बनाते हो, कब बनेगा हमारे एरिया में? अभी सौराष्ट्र और कच्छ का तो आप बात करेंगे पर ये गलत बात है कि वो बिग सिटी में है। एक्चुअली अभी देखोगे तो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं कंट्री में। सिर्फ आप DST का वेबसाइट देखोगे इंक्यूबेशन सेंटर, देयर आर 100+ इंक्यूबेशन सेंटर। आप देखोगे तो 60-70% of incubation centers are in tier 2 and tier 3. हाँ, तो अभी राजकोट, सौराष्ट्र, कच्छ, वो मैं आपके हिरणमयी सर को बोलती हूँ कि आप जरा वहाँ पे सपोर्ट कर लीजिएगा गुजरात के थ्रू। बट देर आर इन टीयर 2, टीयर 3 cities there are incubation center. गुजरात में मैंने बताया बड़ौदा में है। वैसे देखो तो गांधीनगर में, अभी गांधीनगर एंड अहमदाबाद सेम थिंग इज दैट, बट बड़ौदा में है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में है। आप ईस्ट में जाओगे जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप इतना नहीं है, भुवनेश्वर हैज इंक्यूबेशन सेंटर, देयर आर गुवाहाटी हैज इंक्यूबेशन सेंटर। साउथ में जाओगे तो वेलोर जैसी छोटी जगह में इंक्यूबेशन सेंटर है, कोयम्बटूर जैसी जगह में इंक्यूबेशन सेंटर है। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेट्रो सिटी में। और आजकल वर्चुअल इंक्यूबेशन भी काफी ज्यादा प्रोएक्टिव, बहुत सही IIT बात, बॉम्बे में साइन भी काफी सारे प्रोग्राम वर्चुअल इंक्यूबेशन के माध्यम से चलाते हैं। सही और बात। फिजिकल इंक्यूबेशन की अगर आपको जरूरत ना हो, आपको गाइडेंस मिल जाता है तो अपने जगह पे भी कर सकते हैं। और ये जो आइडिया है ना, इंक्यूबेशन एक बिल्डिंग के अंदर होता है, कहीं ना कहीं वो आइडिया पूरा पूरा सच भी नहीं है। आपको अगर साधन मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, मेंटर मिल जाते हैं परवीन मैडम जैसा, और आप लोग ऑनलाइन बात कर सकते हो, तो फिर कहानी बन सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। एक प्रतीक मिश्रा जी हैं, वो कह रहे हैं आई हैव पेटेंटेड माय आइडिया एंड इनोवेशन द प्रोडक्ट, I really got to know more about साइन, एंड मेरा तो कंपनी भी बन गया है। मैं साइन में कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ? वेबसाइट पे जाऊँ, किसको लिखूँ? हाँ, आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किसको लिखना है। हमारी वेबसाइट पे एक लिंक है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, या तो वहाँ पे जो कांटेक्ट नंबर है वहाँ पे लिख लीजिए अगर आपको लिंक नहीं मिला तो। ठीक है, वंडरफुल। अब प्रियंका प्रजापति इज आस्किंग टू यू मैडम कि सोशल एंटरप्राइजेस के लिए कोई पैसा देता है क्या? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए तो फिर भी कुछ लोग दे देते हैं। वो डिपेंड करता है आपका सोशल एंटरप्राइज क्या है। तो अगर आपका सोशल एंटरप्राइज अगर NGO है तो आपको कोई स्टार्टअप के वहां से कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको। आपको डोनेशन, कॉर्पोरेट डोनेशन या कोई गवर्नमेंट का कोई डोनेशन है वो देखेंगे। अगर आपका सोशल एंटरप्राइज ऐसा है कि जो इम्पैक्टफुल है, लाइक बट यू हैव अ रेवेन्यू मॉडल, खुद आप उसमें कुछ बिजनेस का पोटेंशियल है, तो देर आर सोशल इम्पैक्ट फंड्स लाइक विल ग्रो इज देयर, आविष्कार इज देयर, एक्यूमेन इज देयर, बहुत सारे ऐसे फंड्स है जो इन्वेस्ट करते हैं इम्पैक्ट फंड में। पर तो ये डिपेंड करता है कि आपका सोशल एंटरप्राइज कैसा है। जैसे हमारे वहाँ पे एक सोशल एंटरप्राइज हुआ करता था कि लाइक थोड़ा उसमें एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है कि जैसे बाम्बू का हैंडीक्राफ्ट की किट बनता है, बराबर है। तो वो किट बनाने के लिए प्रॉब्लम क्या है हैंडीक्राफ्ट का, कि आपको फिनिशिंग अच्छा होना जरूरी है। तो हमारे डिजाइन सेंटर में से एक फैकल्टी ने अच्छा खासा टूल किट बनाया था और छोटे छोटे मशीन्स बनाए थे विच विल हेल्प आर्टिजन्स टू मेक कम आउट विथ अ वेरी गुड फिनिशिंग प्रोडक्ट। पर वो उनको NGO में ही करना था, तो फिर उसमें उनको मतलब गवर्नमेंट का पैसा नहीं मिल सकता है, गवर्नमेंट का स्टार्टअप पैसा नहीं मिल सकता है। पर अगर उसमें उन्होंने कुछ बिजनेस मॉडल बना दिया होता तो फिर उनको मिल सकता था। अच्छा, एक सवाल मैडम है, आप IIT बॉम्बे में 2004 से इतने सारे स्टार्टअप को सपोर्ट किए हैं, बहुत सारों को बड़े लेवल तक भी लेके गए हैं, तो जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप आज सुन रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि कोई एक दो गलती उनको जो नहीं करना चाहिए शुरुआती दिनों में,
आपने तो बहुत सारे लिस्ट भी बना लिए होंगे कि ये गलती तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने तो पूरी खेत देख डाली है। तो कह रहे हैं आपकी इतने एक्सपीरियंस है तो कुछ प्रसाद मिल जाए आपसे। अरे अच्छा, पहली तो गलती ये है कि अगर आप जो बहुत सारे बच्चे लोग जो बड़ी-बड़ी स्टोरी सुनते हैं ना, कि जैसे बिल गेट्स ने पढ़ाई छोड़ दी और स्टार्टअप किया, जैसे मार्क ज़करबर्ग ने पढ़ाई छोड़ के स्टार्टअप किया, सक्सेसफुल किया। ऐसे बच्चे में कभी-कभार जोश आ जाता है, ऐसी गलती मत कीजिएगा। आपका पढ़ाई खत्म कीजिएगा, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू कंप्लीट। वो 2-4 लग जाता है, पर वो रोल मॉडल अपने, इट्स वेरी रेयर रोल, सो दे आर नॉट अ करेक्ट रोल मॉडल। तो एक तो ये बात है। सेकंड, कमिंग टू ए सीरियस थिंग, अब जहाँ पे मैंने फेलियर, मैक्सिमम फेलियर जो देखा है, 2 जगह जगह पे देखा है। वन ऐसा फेलियर है कि टीम साथ में काम करती है, तो आज हम दोस्त हो गए, तो चलो कर लेते हैं, बराबर है। अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तब पता चलता है कि बिजनेस और दोस्ती में बहुत फर्क है। बिजनेस के लिए आपको अलग अलग स्किल चाहिए, तो आपके जो को फाउंडर टीम में वो स्किल अलग अलग होना जरूरी है। तो वन कैन नॉट एवरीवन कैन वर्क ऑन प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी लेवल, नॉट एवरीवन कैन sell the product, so you require one person who can take care of product side or technology, someone who goes and sells that, someone who manages the operation. So जो बिजनेस के लिए जो आपको टीम चाहिए, it's not a बड़ी बिजनेस और दोस्ती बिजनेस, it's a very proper structure team with complementary skill that you need. That's one thing. पर वो तो चलो इकट्ठा हो गए, पर जैसे बढ़ता है बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं, बहुत कुछ डिसएग्रीमेंट्स भी हो जाते हैं, मेनी टाइम्स टीम स्प्लिट। तो जब वो टीम स्प्लिट हो जाती है, पूरा जो बना बनाया आपका 2-3 साल का काम है, जो शायद रेवेन्यू के लेवल पे भी चला गया है, तो वो पूरा तुम्हारा फेल हो जाता है, यू नो, इट बिकम्स रिडंडेंट, क्योंकि आपका कंपनी टूट गया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फाउंडर्स एग्रीमेंट। तो ये अगर आपको वाकई में कंपनी करना है, तो पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट के हिसाब से टीम बनाइए, एंड ईच टीम मेंबर, ईच फाउंडर मेंबर, यू हैव अ कॉमन अग्रीमेंट। वो अग्रीमेंट जो है उसमें रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कोई गया तो उसकी इक्विटी कैसे वापस आएगी दूसरे लोगों के पास, तो जो अपनी एंटिटी है ना, वो अफेक्ट नहीं होती है। तो एक तो ये गलती है। दूसरी गलती है कि मैंने ये काम किया, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, छोटा सा मेरा टूल बना दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, अभी काम भी कर रहा है, तभी मैं स्टार्टअप करूं। तो स्टार्टअप ऐसे नहीं बनता है। स्टार्टअप आपके जो है, पहले आपके कस्टमर कौन होंगे, आपसे क्यों खरीदेंगे। अगर दूसरा प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट के सामने आपका प्रोडक्ट कैसे सुपीरियर है, तभी आप बेच पाएंगे। अदरवाइज दूसरे प्रोडक्ट तो है ही और वो बिक रहे हैं, तो आप आपका एंट्री कैसे करोगे स्टार्टअप के लिए। तो whenever you start something, keep the customer in your mind. कस्टमर का वो वैलिडेशन शुरू में से ले लेंगे, तो आगे जाके आपको बेचने के लिए या जो रेवेन्यू पाथ है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। तो ये 2 चीज आप मैं बताना चाहती नहीं, आपने हूँ। बहुत 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 देखा है, मतलब मेजॉरिटी झगड़े में फटक हो जाता है, दूसरे मार्केट फेलियर में वो चले जाते हैं। मैं 2 में ही अभी फोकस करूंगी, क्योंकि ये 2 चीज बहुत ही क्रिटिकल है टू स्टार्ट विथ। फिर बहुत सारे आएंगे तो वो तो मेंटरिंग मिल जाएंगे, आपको एडवाइस करते रहेंगे, ये करेंगे वो। तीसरा अगर बताऊं, अगर तो वो एक एथिक्स, क्योंकि मैं देखा है कि फंडिंग आ जाता है, इजी मनी आ जाता है, और सडनली आपका एटीट्यूड और वो सब जो बोलते हैं ना, वो काफी अलग चला जाता है, तो वो ग्राउंडेड नहीं रहता है। और फास्ट ग्रोथ के लिए करने के लिए यू एंड अप डूइंग लॉट्स ऑफ mistakes which are not basically
right for a startup to go in a long term. तो आप गलतियां कर लेते हो, जो रेगुलेटरी गलतियां होती है। कोई भी लोग रेगुलेटरी के लिए, फाइनेंस के लिए इतना अटेंशन, सीरियस अटेंशन नहीं रखते हैं। मैंने देखा है कि रेगुलेटरी के लिए लोगों को 5-10 लाख का फाइन भरना पड़ता है। तो ये सब है। तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैडम बताया। और इस सीरीज में हमने 2 बार इस बात को सुने कि फाउंडर एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सही बात है कि जब खुशी की दिन है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जब खिटखिट चालू होती है तो फिर रिश्तों को संभालने में और कंपनी को संभालने के बीच में वो पूरी कहानी खत्म। एग्जैक्टली। और अच्छा बना बनाया काम खत्म हो जाता है। और लोगों को जो आज सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कंपनी 8-10 साल में खड़ा होता है। 8-10 साल में 8-10 फेजेस होते हैं। हर फेजेस में मल्टीपल डिसीजंस होते हैं। ग्रांट्स, अभी तो हम सरकारी ग्रांट लेने की बात कर रहे हैं। आगे जाके एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाओगे तो वहां बात होगी कि कितना परसेंट में कितना परसेंट देना है, वहां ही खिटखिट चालू होगा। फिर उसके बाद कोई बोलेगा कि ये सही है, कोई बोलेगा नहीं है। तो नेक्स्ट लेके जाओगे तो किसको प्रेफरेंशियल शेयर देना है, किसको नहीं देना है, हर चीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे दिन में पूरी दिन का कैलकुलेशन करके अगर आप पहले से ही ब्लैक बोर्ड में चीजें क्लियर रखो तो इनोवेटर का जर्नी आसान रहेगा। अदरवाइज इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत डिफरेंस। और जो लोग, मैडम आपने सही बताया, जो सक्सेसफुल आइडल्स हैं, उन्होंने अपने मेजर टीम को रिटेन किया आखिरी तक। चाहे एलन मस्क की टीम देखिए, चाहे फेसबुक की टीम देखिए, और खास करके पेपाल माफिया जिसको हम कहते हैं, पीटर थिल का, एलन मस्क का, ये जो 12 लोग हैं जो पेपाल से निकल के बाद में फिर 12 नियर यूनिकॉर्न बनाया है, सबके कंपनी में उनके शुरू के 8-10 लोग आखिरी 10 साल तक टिके रहे। स्पिरिट है। तो पहली बात तो दोस्त नहीं थे, सिर्फ उनके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ था, दोस्ती करने के लिए नहीं बैठे वहां पे। और मुझे तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जरूरत है ज्यादा दोस्त को रखना भी नहीं चाहिए कंपनी में, क्योंकि आप दोस्त का दिल नहीं तोड़ सकते। और अगर बिजनेस खाली दिल से होता नहीं है, आपको रेशनल डिसीजन भी लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि यू नीड टू टेक हार्ड डिसीजन। एंड हार्ड डिसीजन शुड नॉट, यू शुड नॉट बी टेम्पटिंग टू से कि इसका दिल क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, 15 साल का रिश्ता है। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो somehow we need to really take care of the point that you mentioned. And madam, एक सवाल जो हमारे दिमाग में आता है, you are also very strongly associated with platforms like ISBA, Indian Step and Business Incubator Association, and also Global Entrepreneurship Forum. आपने भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में देखे हैं और भारत के बाहर भी बाकी इकोसिस्टम के साथ काफी स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। तो ब्रॉडली इकोसिस्टम बनाने में, अगर गुजरात एक अर्ली स्टेज इकोसिस्टम हम मानते हैं, तो हमें पॉलिसी लेवल पे या टॉप डाउन पे क्या क्या चीजों को सही कदम लेने चाहिए ताकि इन चीजों का रिजल्ट अच्छा आ सके कम ड्यूरेशन में। So I think, see, पहले तो ये है कि कुछ भी आपको सक्सेसफुल करना है, गवर्नमेंट लेवल पे हो या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो, आपको पूरी इकोसिस्टम के साथ कनेक्ट होना है। कितने स्टेक होल्डर है, अगर आप अपने स्टेक होल्डर के साथ नहीं चलोगे, उनके इनपुट लेके नहीं चलोगे, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो मैं कुछ आपको एग्जांपल शेयर करती हूँ। जैसे डीएसटी का मैंने बताया कि वो 80 से काम कर रहे हैं, तो 80 में उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क हुआ करते थे। इट वाज ओनली, वो 2000 के करीब करीब उन्होंने इंक्यूबेशन का पॉलिसी करना शुरू हुआ। क्या ना, वो इंक्यूबेशन पॉलिसी में क्या हुआ उन लोगों ने कि दे डिडंट वर्क ऑन देयर पॉलिसी ऑन देयर ओन। इन लोगों ने इंक्यूबेटर सेंटर हम जैसे लोगों को बुलाया, उन्होंने उनकी कमेटी में एंटरप्रेन्योर को बुलाया, उन्होंने एकेडेमिया को बुलाया, और वहां पे बैठ के हमने क्या क्या किया। मतलब एक तो एकेडमिक सेंटर में अगर आपको इंक्यूबेशन बनाना है तो कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट है। फैकल्टी मेंबर को तो पढ़ाई करवाना है, और फैकल्टी मेंबर का टीचिंग और R&D इज फर्स्ट थिंग। कमर्शियलाइजेशन इज नॉट परमिटेड इन दैट। तो आप कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे? आपके लैब जो है वो पढ़ाई के लिए है, वो आपके स्टार्टअप के लिए कैसे यूज करोगे? या
तो पूरा पॉलिसी लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई इंस्टीट्यूशंस होस्टिंग एन इंक्यूबेटर दिस शुड बी परमिटेड, तो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि एक बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में भर जाते हैं वो तो काफी प्रॉब्लम हो जाता है ना। सिमिलरली स्टार्टअप वालों ने बोला कि भाई हमको इतना सारा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, हमारा इतना सारा टैक्स बर्डन है, इनिशियल स्टेज में हमको वीसी से इतना इजीली पैसा मिलता है, उस टाइम पे तो नहीं था। वीसी में एंजल और ये सब तो नाम बोलते हैं, पुराने जमाने में तो हम एंजल तो सिर्फ जो हम ऊपर हेवन में है उसका ही नाम सुनते थे, और तो एंजल इन्वेस्टर क्या है 2000 में तो हमको किसी को पता भी नहीं था। इन दोस टाइम वो एनवायरमेंट में अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, उनके पास पैसा नहीं था, पैसे कौन भरे देंगे करके, तो गवर्नमेंट ने सीड सपोर्ट बनाया। लेबोरेटरी नहीं थी तो गवर्नमेंट ने इंक्यूबेशन सेंटर में लैब का सपोर्ट दिया है। तो पूरे स्टेक होल्डर जो है उनके साथ कनेक्ट होके आपको पॉलिसी बनाना है। जैसे ISBA इज अ ट्रेड बॉडी। नाउ इंडिविजुअली एज ए इंक्यूबेटर सेंटर में जाके बोलूंगी कि भाई स्टार्टअप का डेफिनेशन ऐसा कर लो, इंक्यूबेटर का डेफिनेशन ऐसा कर लो, तो मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा। पर अगर मैं ISBA को बोलूंगी और ISBA के थ्रू मैं भेजूंगी तो ये एसोसिएशन है, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको एसोसिएशन को भी साथ में रखना है, who represent the community but they don't have direct vested interest है। तो पॉलिसी के लेवल पे ये बहुत जरूरी है कि सब स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बात करना है, देन यू टेक द बेस्ट प्रैक्टिस that is prevailing internationally.